Hey class, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam, khama gani to all of you. Welcome to today's class, and as you all know, this is your statistics session 2 and this is for your CBSE grade 9, right? So in the previous class, I have done the basic introduction to the statistics and I have told you about how different tables can be formed, group data, ungroup data, all those we have discussed, and I gave you a homework question as well. Now the names of the students who have given the correct answer for this question I will tell you in the doubts and menti series, because I am recording this more quickly because of the schedule here. So I'll tell the name of the students for this homework question as well as the homework answer, homework question which I am giving today. Both the names I am going to tell you in the next class. ठीक है. सो अब अंडरस्टैंड करते हैं बेटा. द होमवर्क क्वेश्चन वाज दिस. तो एक तो था कि मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो आई हैव टोल्ड यू कि इफ इट इज 0.00 से 0.04 and then 0.04 to 0.08, suppose something like that. So I have told you upper limit is not included. So if there is any value, suppose 0.04, so 0.04 will be counted in this group, not in this group, right? So table you will be forming is this. The frequency distribution will be 499242. 0.00 to 0.24, all the values will be done and 30 days you have got. Now the next question was, how many days the concentration of sulfur dioxide is more than 0.11 parts per million. So more than 0.11 means what? More than 0.11 means 0.11 say, see all the data are like in this form. So more than 0.11 matlab 0.12 and more than that. So 0.12 will be included in this group, 0.12 to 0.16, right? So I can say कि sir 0.12 to 0.16 till 0. This, all these three groups are more than 0.11 parts per million ppm. So total number of days are 2 plus 4 plus 2. 2 plus 4 plus 2, that is equal to total 8 days. So the answer for this question was 8 days. For 8 days, the concentration of sulfur dioxide is more than 0.11 parts per million. Okay, let's go for the next part. So today we'll be studying about the representation of bar graph. अब देखो बार ग्राफ का क्या लॉजिक है बेटा. Whenever I see at a data, when the data is in the numbers and all, तो it takes me some time to go through it, है ना. But if I give you a picture for it, तो ज्यादा मजा आता है. इन ज्योमेट्री क्वेश्चन ऑल्सो व्हेन यू गेट द डायग्राम इट इज मोर इजी, राइट. सो इट इज वेल सेड दैट पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स. तो वो पिक्चर जो है उस पिक्चर को रखने के लिए वी यूज बार ग्राफ. तो बार ग्राफ क्या है? इट विल रिप्रेजेंट द सेम डेटा बट इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, है ना. कुछ पिक्चर्स दिखेगा तो उससे और इजी रहता है अंडरस्टैंडिंग. आवर आईज वी विल बी एबल टू एनालाइज डेटा मोर क्विकली, मोर इजीली. ठीक है. तो विल बी स्टडिंग अबाउट बार ग्राफ. रिमेंबर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हटा दिया सिलेबस से, वी आर नॉट डूइंग इट दिस ईयर. तो बार ग्राफ में क्या होता है बेटा? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग. ये बात याद रखना, द स्पेसिंग between two bar graphs should be equal between them on one axis, say the x-axis. So x-axis will represent the data for which what you are writing and y-axis will be the frequency. Mostly याद रखना y-axis पे will be keeping the frequency and here will be keeping the type of data, whatever is the observation or type of data, whatever it is given, okay, or observations, whatever it is. ठीक है. रखना. First important point, data is represented in the form of rectangular bar, that is why it is called bar graph. ठीक है, very simple. ऐसा rectangular bar graph, ऐसा डायग्राम देखा होगा बच्चों ने, है ना. You must have seen diagram like this, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसा कुछ, है ना, something like that. So this is called rectangular bars. ये rectangle होते हैं, that is why it is called bar graph. The thickness of each bar should be same. ये thickness जो होता है वो same होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला कर रहे हो. The space between the bar should also be same. ये जो गैप है बेटा ये भी सेम रखना है. ठीक है. The height of the bar should be according to the numerical data. फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तुम लोगों को हाइट ऑफ द बार मिल जाएगा. तो जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट. जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम्स इन द स्कूल. ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा. अब देखो मेरा जो ग्राफ रहेगा वो थोड़ा सा रफ डायग्राम टाइप से लगेगा. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस. अब देखो ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान दो.
27, 36, 18 एंड 12 इस टाइप का ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मेरे को छोटा ग्राफ बनाना है तो आई कैन टेक, अब ग्राफ में बेटा पता है ना 1 सेंटीमीटर, ऐसे सेंटीमीटर स्केल होता है ग्राफ में तो, है ना, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइन होती है, 1 मिलीमीटर की 10 लाइन होती है, याद है। तो तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा अगर तुम लोग 1 सेंटीमीटर पे जो स्केल जो ले रहे हो फ्रीक्वेंसी का, वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लो, 5 यूनिट्स ले लो, 10 यूनिट्स ले लो, ऐसा फैक्टर्स ऑफ 10 लो या फिर मल्टीपल ऑफ 10 लो, तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब ये डेटा, इफ आई एम लुकिंग एट दिस डेटा, तो डेटा इज गोइंग फ्रॉम 12 से लेके 36 तक जा रहा है, ठीक है, 12 से लेके 36 तक। तो व्हाट आई डू, आई टेक फ्रीक्वेंसी एक लेता हूं मैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, है ना, दिस इज माई स्केल ऑन वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, है ना, ये स्केल लिखना जरूरी है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, चलो काम हो जाएगा इतने में, राइट। अब देखो क्रिकेट है तो ये मान लो, देखो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो, 1 सेंटीमीटर में क्रिकेट, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो, 1 सेंटीमीटर में फुटबॉल, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो, 1 सेंटीमीटर में बास्केटबॉल, थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले रहा हूं, ओके। तो 1 सेंटीमीटर गैप, 1 सेंटीमीटर कीप द बार्स थिकनेस, है ना, बार की थिकनेस एक जगह रखो 1 सेंटीमीटर और एक जगह 1 सेंटीमीटर का गैप, इस तरीके से चलना है। तो 1 सेंटीमीटर गैप हियर एंड ये हो जाएगा तुम्हारा टेनिस, ठीक है। क्रिकेट कितने बेटा 27, तो 25 से ज्यादा एंड 27 समवेयर यहां कहीं पे आएगा, ठीक है। ये मेरा रफ डायग्राम बन रहा है तो थोड़ा समझ लेना। 36 कहाँ है, यहाँ कहीं पे, है ना, इतना ऊपर, तो ये मान लो मेरा 36 कहीं यहीं कहीं पे आ रहा है, ये 36 हो गया। 18 कहाँ है, 20 से नीचे 15 के बीच में यहीं कहीं पे आएगा, ठीक है। और 12 कहाँ रहेगा, 10 से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे, ठीक है। अब एक एग्जैक्ट चीज बताता हूँ, वो जो बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तुम्हारा रह जाएगा यहाँ पे क्रिकेट, ये तुम्हारा यहाँ पे रह जाएगा फुटबॉल, ठीक है, एंड ये तुम्हारा बास्केटबॉल एंड ये तुम्हारा टेनिस, ठीक है। अब ये तो इजी था। अब यहाँ पे मेन क्या रहता है ना, मेनी स्टूडेंट्स विल फील कि सर 27 को कहाँ बनाना है, उसको कहाँ बनाना है, तो उसको थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ बेटा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई अपना जो ग्रुप रहता है वो 2 का बनाओ, 5 का बनाओ, उसमें क्या है ना तुम्हारे पास बहुत ईजी रह जाएगा, क्योंकि ये बात को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये ग्राफ तो तुम लोग समझ गए होंगे। अब ये डेटा में कौन सा 27 और ये सब कैसे ढूंढना है मुझे, वो देखो पहले, ओके, उसका मतलब समझ लो पहले। तो उसके लिए बेटा अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सपोज यार एक ग्राफ लेते हैं ना, ग्राफ का एक बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स लेते हैं हम लोग। तो मान लो ये तुम्हारे ग्राफ का एक बॉक्स है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, जूम करके बता रहा हूं मैं, ये 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर के एक बॉक्स के बीच में, ये बीच में एक 5 सेंटीमीटर पे लाइन ऐसे जाती है और एक 5 सेंटीमीटर पे लाइन ऐसे जाती है, ठीक है। अपने को वर्टिकल लाइन से मतलब नहीं है, क्योंकि वर्टिकल में अपन कोई डेटा ले नहीं रहा है, मोस्टली हॉरिजॉन्टल में रहे, तो वर्टिकल वाले को मैं भी काउंट नहीं कर रहा हूं, बट सेम का सेम लॉजिक वर्टिकल में भी अप्लाई होगा। अब हॉरिजॉन्टल वाले केस में बेटा क्या है कि 4 लाइन्स होगी, है ना। तो लेट्स से कि यार ये तुम्हारा 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ये इक्वली स्पेस्ड होती है। ये तुम्हारी 5 मिलीमीटर की लाइन होगी, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। तो मान लो बेटा ये तुम्हारा 5 है और मैंने गैप रखा है 5 का, जो मैंने इस क्वेश्चन में लिया था 5 से 10। तो अब बीच में कैसे मुझे पता चलेगा कौन सी 6 है कौन सी 7 है, उसके लिए एक बहुत ईजी सा मेथड है बेटा। टोटल 10 डिवीजन है हमारे पास यहाँ पे, राइट, और मैंने गैप लिया हुआ है 5 यूनिट्स का। तो 10 डिवीजन जो है, 10 डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 स्टूडेंट्स को, 5 स्टूडेंट्स का इंक्रीज दिखा रहे हैं। 10 डिवीजन जो है 5 स्टूडेंट्स का डिक्रीज दिखा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट का इंक्रीज कैसे पता चलेगा, एक स्टूडेंट्स कितने डिवीजन से इंक्रीज होगा, 5 को उधर डिवाइड करो, 10/5 मतलब 2, मतलब हर 2 डिवीजन के बाद में तुम्हें एक स्टूडेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हर सेकेंड लाइन के बाद में देखना एक बढ़ जाएगा। 5 है, ये 2 बढ़ाओ, तो ये यहाँ पे सेकेंड वाली लाइन तुम्हें 6 दे रही है, यहाँ पे तुम्हें 7 देगी, यहाँ पे तुम्हें 8 देगी
2 बढ़ाने के बाद में 9 देगी और 2 बढ़ाने के बाद में 10 तो है ही है। ठीक है, तो ये सेकेंड लाइन जो है ये तुमको 6 देगी। अब मान लो तुमको 36 बताना था, तो अगर ये 35 है और अगर ये 40 है तो 36 जस्ट यहाँ पे, तो 35 से 2 लाइन ऊपर जो है ये वाला टच करोगे। ठीक है, तो हमेशा ऐसे टाइप के लो कि भाई 2, 5, ये जो ग्रुप लोगे ना कि भाई 0 to 5, 5 to 10, ऐसा जो स्केल लोगे 5 का लो, 2 का लो, 10 का, 20 का, उस तरीके का लो, तो ग्राफ जो होगा बहुत एक्यूरेट बनेगा और इजीली बन जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बराबर दिख जाता है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट की बच्चों को डाउट होता है, तो आई थिंक वो क्लियर है। अब अगर मान लो मैं अगर स्केल अगर 10 का लेता, अगर मैं स्केल 10 का लेता, 10 to 20, 20 to 30, तो हर एक डिवीजन पे एक स्टूडेंट पढ़ता। 10 है और ये 20 है, अगर मान लो इफ अगर मैं 10 का स्केल लेता, 10 का यहाँ पे और 20 का यहाँ पे, तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, हर एक पे एक एक बढ़ते रहता। अगर 2 का लेता तो हर 5 डिवीजन पे एक एक बढ़ते रहता। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा ग्राफ दिख जाएगा, बार ग्राफ। गॉट इट? अब देखो बेटा, बिफोर आई मूव अहेड लेट मी टेल यू ऑल कि टिल नाउ वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, जो भी प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे थे आज तक, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई ना एक तो प्रॉब्लम तो आ ही रही होगी। ठीक है, तो वो सबसे वेदांतु की तरफ से सॉल्व हो चुकी है। डाउट्स तुम्हारे टाइम टू टाइम क्लियर होते रहेंगे हर क्लास में विद अ डेडिकेटेड टीचर। नोट्स एंड असाइनमेंट्स आर शेयर्ड आफ्टर एवरी क्लास, हर क्लास के बाद में। टेस्ट आर टेकन ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे केवीपीवाई, ओलंपियाड, एनटीएससी, ये सब तुमको एक ही जगह पे मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल क्लास मिस कर गया तो रिकॉर्डिंग देख लो, एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस यू विल गेट। ऑल माइक्रो एंड क्रैश कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। माइक्रो कोर्स मतलब चैप्टर स्पेसिफिक कोर्स, क्रैश कोर्स मतलब रिवीजन कोर्स। तो जिस चैप्टर को जितनी बार पढ़ना है माइक्रो कोर्स के थ्रू तुम पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी शेयर होगी तुम्हारे साथ में, एंड पर्सनलाइज अटेंशन टू ईच एंड एवरी किड। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिंक है, ये तुम्हारा कोड है। अब ये कोड क्या करेगा, ये तुमको 15% ऑफ दे देगा, फ्लैट 15% ऑफ, फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा तुमको। ठीक है बेटा, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देन आई विल शो द फी स्ट्रक्चर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन अ सर्टेन डे द टेम्परेचर इन अ सिटी वाज रिकॉर्डेड एज अंडर, इलस्ट्रेट द डेटा बाय बार ग्राफ। अब यहाँ पे देखोगे बेटा, तो डेटा है जो है दैट इज गोइंग फ्रॉम 18 to 24, 26 हाईएस्ट जा रहा है। तो बेटर आई विल टेक द ग्राफ, द फ्रीक्वेंसी पे द स्केल आई विल टेक इट 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर आई विल टेक इट एज 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 0, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब ये टाइम देखो अलग अलग टाइम पे दिखा रहा है। एक है तुम्हारा 5 AM, 5 AM पे कितना 20 तक जा रहा है, चलो भैया 20 तक, ये तुम्हारा 5 AM पे 20। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखता है कौन सा टाइम, 5 AM। 8 AM पे, तो 8 AM पे मान लो यहाँ पे लिख दे रहा है 8 AM पे 24। ठीक है, तो 8 AM पे 24 में 25 से जस्ट नीचे कुछ इस तरीके का रहेगा 8 AM। ठीक है, 11 AM पे ऐसे आगे करते करते देखोगे तो ये ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, 5, 8, 11, 3, 6। 5 देख लो 20 पे टच कर रहा है, 20, ये वाला 20 से 25 से जस्ट नीचे है, ये वाला जो है तुम्हारा 26 है, तो 26 मतलब 25 के जस्ट ऊपर होना चाहिए। 11 PM को कितना है, 11 AM को 26 है। ठीक है, तो ये 26 वाला ये यहाँ कहीं पे आएगा, वो रफ डायग्राम है बट तुम लोगों को समझ में आ गया कि 26 वाला मैं तुमको दिखा देता हूँ, 26 वाला यहाँ कहीं पे आएगा, ज़्यादा गैप नहीं है उनके बीच में, ये ऐसे रहेगा 26 वाला। 26 विल बी समथिंग लाइक दिस। 22 वाला 20 से जस्ट ऊपर यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है बेटा, दिस इज रफ डायग्राम, तुम लोगों को स्केल से ड्रॉ करना है, मेरी तरह प्रो नहीं बनना है तुमको। ठीक है, ओके, और ये तुम्हारा 18 हो गया मान लो। ठीक है, 5 AM, 8 AM, 11 AM, 3 PM एंड 6 PM। ठीक है, दिस विल बी योर बार ग्राफ, ऐसा बार ग्राफ बन जाएगा। मैंने बता दिया कि इफ 5 डिवीजन, अगर 10 डिवीजन पे 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो 2 डिवीजन पे 1 डिग्री बढ़ते जाएगा, बस तो हो गया काम तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बर्थ रेट पर 1000 इन अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज शोन बिलो, रिप्रेजेंट द अबोव डेटा बाय बार ग्राफ। तो सेम ऐसे ही कर लोगे। अब यहाँ पे स्केल क्या चूज करोगे, ये देखना 42, 35, 14, 20, 21। तो 14 से लेके 42 तक जा रहा है, तो
इधर भाई अगर मैं 5 का भी डेटा ले रहा हूं तो 0 5 10 15 20 तो ऐसा करते 8 लाइंस में हो जाएगा, तो इजी है। 5 का डेटा ले लो, 5 का ग्रुप ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। 5 वाले ग्रुप में आराम से बार ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। 5 वाले ग्रुप में इजीली यू कैन मेक द बार ग्राफ। याद रखना अगर 10 डिविजन्स हैं और उस पर 5 का इंक्रीज हो रहा है, बर्थ रेट पर 1000 में 5 का इंक्रीज हो रहा है, तो 2 डिवीजन पे 1 का इंक्रीज होगा, तो 2 पे 1 बढ़ेगा। तो ये अगर मान लो 0 है तो 2 बढ़ने पे 2 1 2 3 4 पूरा एक हो गया 5 6 7 8 9 पूरा गिव 10 लाइक दैट। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? In which subject is the student very good? In which subject he is very poor? And what is the average of his marks? ठीक है, तो ये what information वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो सब्जेक्टिव होता है। तुम लोग बोल सकते हो कि भाई किस में कैसे मार्क्स आ रहे हैं और वो सब कुछ, एवरेज है कि कैसा है, वो तुम लोग लिख दोगे। मेरे को ना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर चाहिए। आई वॉन्ट द आंसर ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का आंसर फ्रॉम यू इन कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। तो कमेंट्स में लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट का। ग्राफ को ध्यान से देख लो, बार ग्राफ को ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा, यहां से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा तो मैं तुमको वैल्यू दे दे रहा हूं। इंग्लिश में आए हैं ऐसा 60, इसको मैं तुमको बता दे रहा हूं, इसको 35 ले लो, ठीक है, इसको 75 ले लो, इसको 50 ले लो एंड इसको भी 60 ले लो, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स है 60 35 75 50 एंड 60। अब आ रहा तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, एवरेज मार्क्स भी बता देना। तो लेट मी नो द आंसर फॉर दीज 3 क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। गॉट इट बेटा? तो एज आई वाज सेइंग एट द स्टार्टिंग, इस लिंक पे जाना है vdnt.in/ytpro और जाओ GP Pro पे। GP Pro पे जाने के बाद में क्लिक ऑन योर ग्रेड 9 CBSE 2021, आ जाओ यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे यहाँ पे आओगे यू हैव द चॉइस फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, ठीक है। अब ये बात याद रखना बेटा कि पहले तो तुमको प्राइस ये दिखाएगा, अब यहाँ पे कूपन कोड लगा दो GP Pro। जैसे ही कूपन कोड लगाओगे GP Pro, डायरेक्ट धड़ाम से 15% ऑफ मिलेगा तुमको। और ये ऑफ जो है ये तुमको 1 मंथ पे भी अवेलेबल है, 3 मंथ्स पे भी अवेलेबल है एंड 6 मंथ्स पे भी अवेलेबल है। बट बेस्ट बात ये है ना बेटा कि 6 मंथ्स में द प्राइस पर मंथ रिड्यूसेस, बहुत कम हो जाती है प्राइस पर मंथ, समझ रहे हो। और मान लो अब ये कितना कम है, ये सोचो कि अगर तुम लोग 6 महीने का कोर्स ले रहे हो एंड वो कोर्स अगर तुम लोग 6 महीने का ले रहे हो, मान लो तुम लोग डेली अगर 8 क्लास ले रहे हो, डेली अगर 8 क्लासेस ले रहे हो, तो तुम्हारी पर क्लास का कॉस्ट जो होगा ना बेटा वो 8 रुपीज से भी कम होगा। 8 रुपए मात्र से भी कम होने वाला है तुम्हारा पर क्लास का कॉस्ट। मतलब समझ लो 8 रुपए में तो आजकल क्या ही मिलता है, एक चिप्स का पैकेट भी नहीं मिलता है, राइट, ठीक है। तो बहुत अफोर्डेबल है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ही करेंगे, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग कर सकते हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे हेल्प मिलेगा, यहाँ पे मोर पर्सनलाइज अटेंशन होगा तो ज्यादा ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा ध्यान रहेगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन हियर, ठीक है। तो दिस इज द लिंक, दिस इज द कोड। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। डाउट्स एंड मेंटी वाले में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू। प्लीज शो अस योर लव एंड सपोर्ट. Don't forget to like the video, share the video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much. I'll see you soon. Bye bye. Sayonara. Khuda Hafiz to all of you. Bye bye.